I'm Dr. Smita. I'm founder of a venture called Health Commune. Health Commune is a platform where we are trying to bridge the knowledge gap between healthcare providers and patients and people. I've done my MBBS, MT, and I'm running my company for last 10 years. This venture we have recently started. Reason is I managed to interact with so many doctors, industry, and people. We create content for patients, and I understood that there is so much knowledge that is there with doctors, there with hospital, but people are not accessible to that. There is so much is happening in the industry. Doctors are not aware, so we are trying to just connect the dots and just become the platform where all that knowledge is available. And every month we pick up the topic where we try to raise the awareness, try to talk to doctors, startups from the industry, so that more and more knowledge we can collect it on our platform. This month our topic was cancer awareness, and especially in cancer we were focusing on early detection of cancer, because we cannot prevent everything, but there is so much that we can do if it is detected at an early stage, and the overall outcome is amazing. Okay, we talked with a couple of doctors, those who are cancer survivors. We talked with breast cancer surgeon, and there are a couple of cancers we wanted to really understand more. One is very important, is a lung cancer. We want to know, and also we have a couple of more meetings where we'll be talking about colon cancer as well. So today I want to talk about lung cancer with you. You have done your specialization in interventional pulmonology, and you're practicing in Nagpur at Vivek Hospital. So could you please tell me quickly about what all super specialization you have done and regarding your work? Hi, firstly, I should congratulate you that you're actually becoming a bridge between a doctor and a patient, and it's very good. They should have the knowledge what is required, one thing. And secondly, I'm Dr. Deepak Mutreja. I'm working at Viveka Hospital. It's a multi-specialty hospital. I'm working as an interventional pulmonologist. I did my MD in pulmonary medicine, then DNB in pulmonary medicine. Then I have also 2 European diplomas in adult and pediatric respiratory medicines. And then recently I was awarded with Fellowship of American College of Chest Physicians at Nashville last year. Amazing. And you take care of all the respiratory pulmonology related cases, or you focus specifically on lung cancer? No, actually I'm taking care of all the pulmonology related disorders, respiratory disorders. My interest is on the lung cancer. Okay. And why is it so? Because I'm having a lot of the researches going on lung cancers as well. Oh, wonderful. And before I get into more discussion, clinical discussion, is if people wants to later, after watching this video, if they want to get online consultation with you, or so you are in Nagpur, so where to book the appointment with you, and we'll keep all your OPD timings available along with the video, of course, but if you can help us with that. They can go to the websites of Viveka Hospital. They will get all the details. And the phone number, I'll share it across with you. Okay, perfect. Great. Wonderful. So let's talk about lung cancer. We were looking at the report which is published in November 2022. It's ICMR report, and there are predictions that probably lung cancer will increase 7-fold, and the prevalence is continuously increasing for lung cancer in India. And we also see the trend in women. So what's your observation in your practice? Do you see that there are more lung cancer patients that are visiting you now, or you're able to diagnose, or what's the trend? Where are we with the lung cancer in India? See, again, I'll be very upfront regarding the lung cancer detection. India is a country we call it as a TB endemic country, whereas tuberculosis is much more prevalent. So any problem on an X-ray, it is that the patient takes anti-tubercular treatment. People are still relying on X-rays for giving the anti-tubercular treatment, because of which the cancers are underreported. And yes, they are increased in number of people having lung cancer. The age has gone down. I have seen the earliest lung cancer at the age of 36. Luckily, we were able to diagnose him at the earliest, so that we were able to save his life, and now still the patient is with us. It's been more than 5 years. And secondly, since now you are also seeing that there is a sea change in the population dynamics. Now people are more addicted towards smoking.
we are finding more women also going for smoking, and smoking being one of the most important factor causing lung cancers. So hence we are getting more women also getting lung cancers. Other than this, your smoking, there are many factors such as air pollution. We are already living in a polluted kind of environment. Then there are also that biomass exposure, like chula exposure, which is there. That is also one of the reason for increase in the lung cancer in women. So if you ask me, taking in toto, any kind of noxious agent inhalation can cause lung cancer, because it's going through it is causing the damage to the lung mucosa, and there is aberrant healing. The healing doesn't occur properly, and that leads to disorganized growth of the cells, and which is nothing but a tumor, what we call it as, which is nothing but cancer. So, I'll just add little more Hindi questions as well, because we have audience of outside. I think that was the first thing I asked you. Are you comfortable with Hindi? Correct. So the kind of patients that are visiting you, जो आप diagnose करते हैं, are they predominantly with the history of smoking, या फिर वहाँ पे mixed traits है? आपको क्या observe होता है आपके जो patients? Predominantly सबसे ज़्यादा तो smokers ही हैं, इनमें अपना lung cancer हम देख रहे हैं. अभी yes, and ladies में थोड़ा सा जो old age ladies हैं जो आ रही हैं, they don't have a smoking history, but they have this exposure to, मतलब चूल्हा स्मोक, चूल्हे पर खाना बनाते हैं आज भी, और आज भी लकड़ी यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, जलाने के लिए. तो ये रीजंस है जिसके कारण उनमें कैंसर्स अभी दिख रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट, जो मैक्सिमम पेशेंट्स देखते हैं वो स्मोकर्स रहते हैं, बट ये धीरे अभी नंबर इंक्रीज हो रहा है इन नॉन स्मोकर्स. Okay. Or all the patients that are visiting you, what are the most common symptoms? At what time they realize कि आपके पास आके दिखाना है, या खुद कैंसर सस्पेक्ट करते हैं, या उन्हें लगता है कि कोइंसिडेंटली आपको कैंसर आइडेंटिफाई हो जाता है एक्सरे में? What's the trend there? So it's not about the trend, but I'll say क्या है ना कि me being a tertiary care physician, मतलब patient क्या है ना, मेरे पास पहुंचने के पहले they have already visited 5 to 6 doctors. As I was telling earlier, जैसे मैं पहले बता रहा था कि अपने यहाँ पे TB is very common. तो any problem on a X-ray, even a scar, first उसको एंटी-ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दे दी जाती है. और जब एंटी-ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट पेशेंट को अफेक्ट नहीं करती है, फिर वो हमारे पास आता है ये बोलने के लिए कि यार सर ठीक नहीं हो रहा है. तो क्या है, दैट टाइम we realized that it was a malignancy which was not diagnosed, and now it has increased. Okay. तो एक आम आदमी को हाउ टू डिफरेंशिएट, उनको कैसे पता चले कि ये ट्यूबरक्लोसिस नहीं है और कैंसर हो सकता है, ताकि वो अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो? यस. सो पहली चीज़, कोई भी टीबी का ट्रीटमेंट हमें एम्पिरिकल, मतलब हमारे पास अगर कोई अंदाज पे बोल रहा है कि आप टीबी की दवाई लेके देख लीजिए, अगर हमारी खांसी नहीं जा रही है, और हमें कोई बोलता है कि बिना कफ का जांच किए आप टीबी का दवाई लीजिए, तो एक बार ना एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट को दिखा के हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो टीबी ही है. देन ओनली टीबी की दवाई लेनी चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, अगर स्मोकर हैं और पेशेंट अगर एज मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड, देन चांसेस दैट कि उनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं देन टीबी. तो वो एक रीज़न है कि जब भी आपको कुछ भी ऐसी तकलीफ रहे जो कि, और एक्सरे में कुछ दाग दिख रहा है, दाग या कुछ भी सफ़ेद ओपेसिफिकेशन, व्हाट वी कॉल इट एज, अगर आपके एक्सरे में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, सी ए स्पेशलिस्ट एंड देन गो एड विद द ट्रीटमेंट. एम्पेरिकली टीबी का दवाई लेके देख लें, एंटीबायोटिक्स लेके देख लें, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. जी, गॉट इट. और विमेन में कैसे होता है कि उनमें भी सेम आपको ऑब्जर्व किया जाता है? सिम्टम्स देखिए इशू ऐसा है कि दोनों के सिम्टम्स भी मैच करते हैं, टीबी और कैंसर के. करेक्ट. टीबी में भी खांसी आती है, कैंसर में भी खांसी आती है. वजन टीबी में भी कम होता है, कैंसर में भी कम. करेक्ट. बट इसमें डिफरेंस यही है कि टीबी जो बीमारी है ये एक बैक्टीरिया के कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और कैंसर जो है दिस इज अ ट्यूमर, मैलिग्नेंसी. तो आपको सिम्टम्स तो सेम है,
बट अगर आपके कफ में वो जंतु नहीं दिख रहा है टीबी वाला और आपको इतने सिम्टम्स हैं, तो एक मन में क्या लाना चाहिए कि नहीं टीबी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड उसके बाद अपन इवैल्यूएट कर सकते हैं नोवोड लंग कैंसर। तो लंग कैंसर का कंफर्म डायग्नोसिस आप कैसे करते हैं? देखिए, कंफर्म डायग्नोसिस उसका होता है, या तो उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, अपने को बायोप्सी करनी ही पड़ती है लंग कैंसर के लिए। अब बायोप्सी करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, दैट इज सिंस आई एम इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट, वी डू ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी, क्योंकि वो सेफ है। हम क्या करते हैं, एक जैसे एंडोस्कोपी कैसे रहती है वैसे हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। हम लंग्स के अंदर जाते हैं और जहाँ पे ट्यूमर दिख रहा है वहाँ उसकी बायोप्सी हम लेके आते हैं। ये एक बेसिक मेथड है। अगर ट्यूमर आपके एयरवेज मतलब श्वास मार्ग के इधर नहीं है और बाहर की तरफ है, तो हम लोग सीटी गाइडेड बायोप्सी करवाते हैं। बट सीटी गाइडेड बायोप्सी के थोड़े से कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए प्रेफरेबली हम लोग फर्स्ट ट्राई करते हैं कि ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी हो जाए, देन हम सीटी गाइडेड बायोप्सी के लिए सजेस्ट करते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी। करेक्ट। तो जो पेशेंट आपके पास आते हैं जो इधर उनको ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट ली है लेकिन फेल हो रही है और सिम्टम्स ऑलरेडी कंटिन्यू सेम सिम्टम्स है और वो चेस्ट एक्सरे वगैरह सारे डायग्नोसिस आते हैं, तो आप पहले ब्रोंकोस्कोपी उनको सजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बायोप्सी लिया जाता है और फिर बायोप्सी में कंफर्म डायग्नोसिस बनता है कि ये कैंसर है या नहीं है करके। जी। कितने टाइप के लंग कैंसर है और ऐसा कोई कैंसर है जो स्मोकर्स में ज़्यादा है और दूसरा कैंसर है जो नॉन स्मोकर्स में ज़्यादा है, ऐसे कुछ होता है? कैंसर जो लंग कैंसर है उसको मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है स्मॉल सेल लंग कैंसर, एक है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। जी। स्मॉल सेल लंग कैंसर ये बहुत एग्रेसिव रहता है, इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है। एंड ये जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है ये प्रिडोमिनेंटली आपके स्मोकर्स पे पाया जाता है। अगर हम नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर की बात करें तो ये काफ़ी वैरायटी के हैं। इसमें मेन जो 2 हैं दैट इज स्क्वामस सेल और एडिनोकार्सिनोमा। हम ये 2 के बारे में इसलिए बात करना चाहेंगे क्योंकि ये दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है वो स्मोकर्स में ज़्यादा पाया जाता है, जबकि एडिनो जिसका भी आजकल प्रिवेलेंस बढ़ रहा है ये नॉन स्मोकर्स में पाया जाता है। तो हमें ये डिफरेंशिएट करना बहुत नेसेसरी है और ये हम बायोप्सी पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करके एक अपना इसका प्रोसीजर रहता है, एक टेस्ट रहती है जो कि हम बायोप्सी सैंपल में डिफरेंट स्टेन्स लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो कौन सा कैंसर है। करेक्ट। और ये जो टाइप का कैंसर है उससे आगे की ट्रीटमेंट और उसके कंप्लीट मैनेजमेंट डिसाइड बाद वो आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड होगी। जी जी। तो इसलिए मतलब फॉर पेशेंट्स उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको बायोप्सी की जाती है और उसके बाद में आपने फर्दर मोर इन्वेस्टिगेशंस वी हैव टू डू द कंफर्म डायग्नोसिस। ये जो बायोप्सी ली जाती है उससे लेके रिपोर्ट आने तक यूजुअली कितना टाइम लग जाता है? देखिए, बायोप्सी का रिपोर्ट तो आपको 5 से 7 दिन में आपके हाथ में रहता है, इसमें आपको पता चल जाए कि कैंसर है। उसके बाद आप आईएससी के लिए भेजते हैं, तो आईएससी में डिपेंड करता है कौन से सेंटर से आप कर रहे हैं, तो इट टेक्स 7 to 10 days। ओके। और यूजुअली इस टाइम में जो है उसके बाद पेशेंट को अगर कैंसर है तो उनको जो भी ट्रीटमेंट सजेस्ट करती है, एक चीज़ मैंने इंडिया में अगेन ट्रेंड देखा है कि डायग्नोसिस के बाद पेशेंट्स काफ़ी टाइम लगाते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करने को, ये सोचते हुए कि मुंबई में चले जाते हैं या चाचा जी के पास चले जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे वो कल्चर काफ़ी है, या फिर और डॉक्टर से कंफर्म करा लेते हैं और उसमें कैंसर एक तरीके से ये है जो ग्रो हो रहा है, काफ़ी एग्रेसिव कैंसर रहते हैं और कैंसर तो कंटिन्यूसली ग्रो होते रहता है। तो उसको आप क्या पेशेंट्स को या क्या सलाह देना चाहेंगे उस टाइम पे? देखिए, कैसा है, सबसे पहले तो अगर आप में कैंसर डिटेक्ट हुआ है, बायोप्सी में कैंसर आया है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि उसमें कैंसर नहीं है। हमारे पास एक रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट ऑलरेडी है, वन थिंग। सेकेंड, अगर कैंसर एक बार डायग्नोसिस हुआ तो उसका नेक्स्ट रहता है स्टेजिंग के अभी आजकल बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। हम स्टेजिंग करने के बाद पेशेंट को हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे डाल सकते हैं। अगर ये पेशेंट टाइम वेस्ट करते हैं तो स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 पे जाने में ज़्यादा वक्त ही लगता है, क्योंकि कैंसर में एक कॉमन चीज़ रहती है डबलिंग टाइम, कितने टाइम में सेल्स डबल हो रहे हैं, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विद टाइम, जैसे एक दिन में एक सेल का 2 सेल हो रहा है लेकिन एक सेल तो है नहीं वो,
तो इट विल लाइक इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, उसकी ग्रोथ जो रहती है वो एक्सपोनेंशियल रहती है। तो अगर ये पेशेंट 3 महीना सोचने में लगा लेता है तो हिज स्टेज चेंजेस फ्रॉम स्टेज 2 टू स्टेज 3। और अगर कुछ एग्रेसिव कैंसर्स रहे जैसे कि स्मॉल सेल लंग कैंसर, तो दे रीच फ्रॉम डायरेक्टली स्टेज 2 टू स्टेज 4। जो लिमिटेड डिजीज से दे डायरेक्टली गो टू एक्सटेंडेड डिजीज, क्योंकि जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है उसमें 2 ही मेन स्टेजेस है, दैट इज लिमिटेड डिजीज एंड एक्सटेंडेड डिजीज। करेक्ट। तो वो एक्सटेंडेड में चले जाते हैं या एक्सटेंसिव में चले जाते हैं। और हमें जैसे ही डायग्नोस हुआ है, हमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट शुरू करना अनिवार्य रहता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप पे, एक बार स्टेजिंग हो गया तो वी कैन गो अहेड विद आवर डिफरेंट प्रोसीजर्स, और हम अपना डिफरेंट जो ट्रीटमेंट थेरेपीज अवेलेबल हैं, वी कैन हैव एन गुड एक्सेस टू दैम। करेक्ट। और अगर आई डोंट थिंक इट्स अ करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क, बट फिर भी ये कितना जब हम बोलते हैं बहुत एग्रेसिव, तो आपने पेशेंट्स देखे हैं एग्रेसिव, हम कितने टाइम की बात कर रहे हैं स्टेज 1 से एकदम एडवांस स्टेज वाला? व्हाट्स द टाइम? आर वी टॉकिंग अ मंथ और अ ईयर? क्या रहता है ये? It's again a very good question, and I remembered a patient which I saw just about a couple of hours before. जी. So this patient was diagnosed with lung cancer, query lung cancer, in September 2022. That's like 5 months from now. Correct. That time he had a very small tumor. It must be stage 1. The CT was done. Was the tumor size was less than 2 centimeters. He came with a complete right lower lobe lung cancer, where he has reached from stage 1 and now he has effusion also. मतलब पानी भी भर गया है, तो it is stage 4. Oh my God. Okay. तो उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया ये टाइप में? कुछ ट्रीटमेंट नहीं लिया क्योंकि वो डिनाइल में रहे कि नहीं, हमें कैंसर नहीं हो सकता है। My God. Okay. तो यही चीजें हैं कि बिकॉज, और रिगार्डिंग एग्रेशन ऑफ द ट्यूमर, यू कैन नॉट रियली प्रेडिक्ट ऑन डे 1। जब आप डायग्नोसिस कर रहे हैं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये ट्यूमर कैसा बिहेव करेगा। सम ट्यूमर्स आर स्लो ग्रोइंग, धीरे धीरे ग्रो होंगे। तो बहुत बार ऐसे होता है कि सालों साल और ट्यूमर अपना बढ़ते जाता है, मतलब सालों तक बढ़ते जाता है, देन वो अपने सिम्टम्स शो करता है। और बहुत बार ऐसा रहता है कि विद इन आपने डायग्नोस किया एंड विद इन 6 मंथ्स अगर पेशेंट ने कुछ थेरेपी नहीं ली तो ट्यूमर इतना ग्रो हो जाता है कि पेशेंट को हम बचाना मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। और काफी इंडिविजुअल भी रहता है कि कितना फास्ट ग्रो होगा, लेकिन मतलब 5 महीने की बात कर रहे हो आप? जी। एग्रेसिव कितना रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। जी। और कमिंग बैक टू लिटिल बिट डिस्कशन ज़्यादा हम करते हैं स्मोकर्स के बारे में, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्मोक करते हैं, मेरे ऑफिस में लोग हैं जो स्मोक करते हैं, और मैंने देखा है कि टू क्विट स्मोकिंग इट्स नॉट ईजी। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि इट्स वेरी ईजी टू क्विट अल्कोहल, और हैबिट में से रहते हैं कुछ और हैबिट्स है तो वो, लेकिन स्मोकिंग की हैबिट छोड़ना बहुत ही मुश्किल जाता है उनको, वो एडिक्शन ज़्यादा रहता है उसका। तो ये जो है, और वो यंग लोगों में, तो मेरा क्वेश्चन ये है आपको ये कि कितने साल तक आपने जो पेशेंट देखे हैं उसमें उन्होंने कितने साल तक स्मोकिंग किया और कितना स्मोक करते थे वो? अगर मैं आपको बताऊंगा आप विश्वास भी नहीं करेंगे। इवन इफ किसी ने 1 महीना भी स्मोकिंग किया है, देन आल्सो आई हैव सीन लंग कैंसर। ओके। तो एट्रीब्यूटिव फैक्टर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि स्मोकिंग कितने केसेस में एट्रीब्यूट करती है, तो इट इज 80%। टाइम फैक्टर, इट डजंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ स्मोकिंग। यस, इट हैज रिलेशन विद स्मोकिंग ईयर्स, कितने साल स्मोक किए उसके साथ रिलेशन है कैंसर के अपना इंसिडेंस का, बट देयर इज नो डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप। तो ऐसा नहीं है कि हमने खाली 1 महीना स्मोकिंग किया, मतलब देयर वाज वन स्टडी विच शोड दैट अगर पेशेंट स्मोकिंग क्विट करता है उसके बाद भी ही इज एट अ हायर रिस्क फॉर लंग कैंसर देन नॉन स्मोकर। जी। और रिगार्डिंग आपने जो एक चीज पॉइंट आउट की कि स्मोकिंग क्विट करना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं। और इसमें ना देयर आर स्मोकिंग सिजेशन के ना कुछ स्टेप्स रहते हैं। इसमें यू हैव टू काउंसिल पेशेंट, आपको उसको असिस्ट करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है उसके लिए अपना स्मोकिंग सिजेशन के लिए। देन फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनको कौन सी चीज़ को लेके दे हैव दिस अर्ज टू टेक स्मोक, वो सब चीज़ों को जब स्टॉप करते हैं
then we can have like कि smoking cessation can be a easy job. अल्कोहल सेडेशन भी इजी नहीं है. कोई भी एडिक्शन और डी एडिक्शन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड नोइंग अबाउट द डिजीज इज लाइक विल श्योरली हेल्प. एंड व्हाट यू आर डूइंग अबाउट दिस अवेयरनेस एंड ऑल, I really feel that this public awareness and these kinds of things will surely help people quitting smoking. And there are many social organizations, there are many non-governmental organizations which are helping people to quit smoking. Correct. I have one question, and if you think after giving the answer you want me to not to add this, I'll be happy. But we have seen, especially for quit smoking campaign जो इंडिया में चलता है, ठीक है, हमें वो मूवी के पहले जो एड दिखाई जाती है, ठीक है, दैट्स द ओनली अवेयरनेस कैंपेन दैट इज गोइंग ऑन एट अ मास लेवल, और कुछ नहीं होता. और मैंने आज तक आई एम अ डॉक्टर, इसलिए आई कैन जस्ट ओपनली स्पीक अबाउट इट, मैंने आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं सुना है ये जिसने मुझसे बात की है इन माई 10 years ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस कि मैंने वो एड देखी और मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया है ऐसे करके. सो डू यू थिंक दैट इज इफेक्टिव? No, it is not. The reason behind why I'm saying this, कैसा है ना कि आप जो दिखा रहे हैं, people are least interested in seeing that. And कैसा है ना कि उसमें जो भी चीज़ें दिखाती हैं, that is like more of your disturbing sees this show, but that doesn't affect, क्योंकि वो कैसा है, that is a short term memory. आपने देखा, आप घर गए, आपने उसमें ध्यान नहीं दिया, तो जी, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट उनको आप बैठा के समझाइए कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें अपन प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड इट इज़ मोर ऑफ अ 1-to-1 कन्वर्जेशन देन शोइंग इन ऑन अ मास मीडिया. जी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, मतलब एक एग्जांपल दिया था अपना कि दे बैंड ऑल दी लीकर एडवर्टीजमेंट्स. करेक्ट. Still the leaker sale has not gone down. True. It's still the same. Correct. We have seen. Yeah, it has increased. Correct. I agree. Coming back to, we were at the diagnosis level ki bronchoscopy, biopsy, we have diagnosed. So what's the first treatment that you suggest to the patient? What is the management protocol? Usually किस तरीके से उनको treat किया जाता है? So अभी now we are in a era where we have lot many guidelines regarding diagnosis and staging. First we diagnose the patient that he is having cancer. Then we stage. अब staging के लिए there are different methods. There is PET CT. PET CT में आपको पता चलेगा ये कहाँ फैला हुआ है. देन अगर PET CT में देयर आर लिम्फ नोड्स, अगर अपना गठाने हैं चेस्ट के अंदर, तो वी डू अ प्रोसीजर कॉल्ड एज एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, जहाँ पे हम जैसे जो ब्रोंकोस्कोपी किए थे, अभी सेम ब्रोंकोस्कोप है, उसके आगे में देयर इज अ सोनोग्राफी पोर्ट. वो जाके हम अंदर लिम्फ नोड्स की बायोप्सी ले लेते हैं, जिससे पता चलता है कि लिम्फ नोड्स मैलिग्नेंट हैं कि नहीं, सो दैट कि हम पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीटमेंट एडवाइस कर पाए कि वो कौन सा डिजीज है. वो अपना N0 मतलब नो लिम्फ नोड, N1, N2, N3, ये सब स्टेजेस हैं लिम्फ नोड के जो बायोप्सी करते हैं. और वंस हम लोग स्टेजिंग डिसाइड करनी है, तो जो अर्ली लंग कैंसर्स रहते हैं, like stage 1, stage 2, sometimes stage 3A also, these are can be surgically removed. तो हमें मेन चीज़ है कि we have to do any therapy as with the curative intent. हमें there are two intents while doing a treatment of lung cancer. One is curative intent, one is palliative intent. Curative intent मतलब जब आप पेशेंट को डिजीज फ्री करना चाहते हैं. सेकेंड आपका पैलेटिव इंटेंट रहता है जहाँ पे डिजीज मौजूद है बट आपको पेशेंट को एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है, राइट. तो फर्स्टली इट इज ऑलवेज क्यूरेटिव इंटेंट. तो जैसे आपका स्टेजिंग हो गया, अर्ली लंग कैंसर है, वी सेंड देम फॉर आपका सर्जरी. देन अदर ऑप्शंस आर नाउअडेज इट इज पिकिंग अप दैट रेडियोथेरेपी. फॉर सर्टन लंग कैंसर्स दे आर गोइंग डायरेक्टली फॉर रेडियोथेरेपी. अगर पेशेंट सर्जिकल कैंडिडेट नहीं है तो वी कैन डू रेडियोथेरेपी. देन थर्डली विच इज मच मोर टॉक्ड अबाउट इज कीमोथेरेपी. अर्लियर डेज लोग बोलते थे कि कीमोथेरेपी हमें सूट नहीं करेगा, हमें रिएक्शन आएंगे, बट नाउ द कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल्स हैव चेंज्ड. देयर आर कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स व्हिच पेशेंट कैन इजीली टॉलरेट. और उसमें यस साइड इफेक्ट्स है क्योंकि आखिर वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, बट उतना घबराने की बात नहीं है.
And in chemotherapy also now there is a new thing which is, I will not say it is a new thing, it was prevalent earlier also, that is targeted therapy. टारगेटेड थेरेपी मतलब क्या करते हैं, जैसे हमने अब डायग्नोसिस कर लिया कि ये ट्यूमर है, फिर हमने पेट स्कैन करा लिया, हमने एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड कर लिया, हमने बोल दिया कि ये स्टेज है. अब इसके साथ में जो हमें टिश्यू मिलता है ना, जब हमने IHC किया था तो IHC के साथ में हम एक बार उसका टारगेट देखते हैं कि उसमें कौन सा म्यूटेशन जिसके कारण पेशेंट को लंग कैंसर हुआ है, और वो म्यूटेशन के अगेंस्ट में हम ड्रग्स देते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे EGFR करके एक म्यूटेशन रहा, अगर उसमें ये जीन में म्यूटेशन रहा तो हम पेशेंट को जेप्टिनिब, अर्लुटिनिब ऐसे ड्रग्स देते हैं जो कि उसका लाइफ स्पेन भी बढ़ाता है और डिजीज फ्री लाइफ भी बढ़ाता है जी. तो दिस इज अ टाइप ऑफ कीमोथेरेपी, जबकि खाली टैबलेट, जेप्टिनिब तो खाली टैबलेट आती है, जस्ट सेप्टिक टैबलेट्स. तो द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर हैज इवॉल्व्ड. I still remember 10 years back, if we have been doing this interview, I would have told you, यार stage 4 में भी कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है और हमारे पास सारे patients stage 4 के आते हैं. Correct. But नहीं, with this new technologies and today is in 2023, we are able to diagnose early lung cancers. There are so many technologies which are helping us to diagnose it earlier. Like I told you about bronchoscopy, we also have ultra thin bronchoscopy, we have radial ultra bronchosound, endobronchial ultrasound, जहाँ पे हम छोटा सा छोटा जो ट्यूमर है उसको भी हम बायोप्सी करके हम पेशेंट को बता सकते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है, और हम उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए भेज सकते हैं. करेक्ट. ये जो आप जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, नागपुर में ये अवेलेबल है अभी? क्योंकि जी नागपुर वाले मतलब यहाँ से सैंपल जाता है आपके टर्शरी केयर सेंटर्स में ही जाता है, बट यस हम करवा सकते हैं, ये इजीली हो जाता है. ओके. क्योंकि यूजुअली अगेन कैंसर के बारे में मैंने ये भी देखा है, लोगों का ऐसे रहता है कि आपको मेजर सिटी में ही, बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में ही सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है. ऑफ कोर्स नागपुर इज अ बिग सिटी ना. Okay, you can call it a big city, okay, but still I'll tell you one thing, कि जैसा है ना कि आजकल एवरी ट्रीटमेंट इज अवेलेबल एवरीवेयर. इफ यू आर गोइंग टू टायर 1 सिटीज, टायर 2, टायर 3, तो टायर 2 में भी अभी सारे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है विच यू गेट इट टायर 1. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इन टायर 2 सिटी ना यू गेट इट एट अ वेरी अपना कंपेरेबल प्राइसेस. मतलब करेक्ट. सिंपल सा कोई टेस्ट अगर यहाँ पे करना है तो सस्ता रहेगा, बॉम्बे जाके करना है तो बहुत महंगा हो जाएगा. करेक्ट. तो थिंग्स आर दैट कि एक है कि पेशेंट का पर्सपेक्टिव यही है, बट यस जो बिग कैंसर सेंटर्स है इंडिया के, जैसे टाटा मेमोरियल और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट थेरेपी अवेलेबल है नाउ, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल. करेक्ट. या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी भी मुश्किल है पूरी थेरेपीज मिलना, बिकॉज अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वो लोग. एंड जैसे अभी एम्स आ रहे हैं हर शहर में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उनको थेरेपी भी मिल रही है. मतलब दे आर गेटिंग द फंड्स टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, और पेशेंट को थेरेपी देने में सक्षम हो पा रहे हैं अभी. करेक्ट. तो आपके जो सेंटर है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे वी हैव द फैसिलिटीज ऑफ डायग्नोसिंग, सर्जिकल, कीमो, रेडियो, सब कुछ उनको एवरीथिंग हो जाएगा. ओके, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नागपुर. दैट्स अमेजिंग. ओके, एक चीज़ पूछनी थी आपको कि ये जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है, राइट फ्रॉम द डायग्नोसिस अप टू द रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इज इट कवर अंडर इंश्योरेंस जो है, जो लंग कैंसर ट्रीटमेंट करती है वो? इंश्योरेंस डू कवर इट, एंड देयर आर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स आल्सो व्हिच कवर ऑल दीज इन्वेस्टिगेशन. अभी रिसेंटली इवन द एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर CGHS ऑल्सो. ओके. So there are a lot of, मतलब government is also trying to include all the newer diagnostic procedures under these heads, और वो पेशेंट बेनिफिट ही हो जाता है, जहाँ पे पेशेंट को पता है कि मैं एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है जो चीज़, तो वो अगर वो स्कीम के अंडर है तो they can get it at a comparable cost, affordable cost. और ये जो है, मतलब अगर किसी के पास अगर इंश्योरेंस नहीं है और बहुत ही ज़्यादा फ्रॉम लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से अगर कोई पेशेंट आता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है,
और वो पेशेंट आपके पास आता है, तो हाउ डू यू गाइड देम, हाउ डू यू सजेस्ट देम अगर उनके पास बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है तो? देखिए कैसा है ना कि आजकल जो टाइम है जहाँ पे, बिकॉज इन इंडिया स्टिल वी हैव टू पे फ्रॉम आवर ओन पॉकेट्स, राइट? जी So we do have like certain आपके कुछ पेशेंट्स जो सच में अफोर्डिंग नहीं है, उनको हम मैनेज करके वी कैन डू द डायग्नोसिस फॉर देम एट अ लोअर कॉस्ट ऑल्सो. जैसे मैंने बोला कि इट इज़ नॉट ऑलवेज मैंडेटरी टू डू एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, इट्स अ लग्जरी. अगर नहीं होता है तो हम लोग खाली प्लेन ब्रोंकोस्कोपी से, विच विल नॉट कॉस्ट, मतलब इट शुड बी अफोर्डेबल बाय द पेशेंट, हम उसको वो कर सकते हैं ब्रोंकोस्कोपी. एंड देखिए चार्जेस जो बात है, इट इज़ अ डायनामिक थिंग, इट इज नॉट ऑलवेज फिक्स्ड. तो एज अ डॉक्टर, यू आर ऑल्सो डॉक्टर, यू मस्ट बी सी कि हम लोग बहुत बार कितने पेशेंट्स को भी ट्रीट फ्री ऑफ कॉस्ट. हम लोग ना ही हमारा कंसल्टेशन लेते हैं, ना ही हमारा प्रोसीजर चार्जेस लेते हैं. जी काफ़ी सारा, मतलब अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि अगर आप अपन बेसिक नेसेसिटी देखें ऑल ओवर, जितना डॉक्टर सोशल सर्विस करते हैं उतना कोई नहीं करता. जी क्योंकि डेली अगर आज मैंने दिन भर में 20 पेशेंट्स देखे हैं तो मैंने 4 पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखे, जी राइट? जिनके प्रोसीजर्स नहीं हो सकते थे, तो अगर मैं महीने के 30 प्रोसीजर्स कर रहा हूँ तो उसमें से 2 प्रोसीजर ऐसे रहेंगे, 2 से 3 प्रोसीजर्स जो कि मैंने 10% ऑफ प्रोसीजर्स जो कि मैंने एट अ सब्सिडाइज रेट्स या ओनली कंज्यूमेबल्स जो लगे हैं उसको चार्जेस करके करे हैं. कॉस्ट इज अ वेरी डायनामिक काइंड ऑफ थिंग. फॉर्चुनेटली कोई गरीब आ रहा है तो वी डू हेल्प देम आउट. करेक्ट. और इस बारे में यूजुअली कोई बात नहीं करता, ठीक है? तो वी नो कि काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है कि कौन से कमर्शियल डॉक्टर्स है और कैसे ये हुआ जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में बात की जाती है. इवन आई रिमेंबर कि मैं जब मेडिकल ऑफिसर करके जॉब करती थी या इंटर्नशिप में देखा है मैंने ड्यूरिंग माई एमडी, तो ऑफकोर्स मैंने क्लिनिकल साइड नहीं किया है, फार्माकोलॉजी में वी डोंट हैव क्लिनिक्स, लेकिन उसमें भी कोई अफोर्डिंग पेशेंट्स नहीं रहते. और मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी देखा है अगर पेशेंट आगे बात करते हैं तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स उनका चार्जेस वेव ऑफ कर देते हैं. और ये बहुत ही ज़्यादा रूटीन प्रैक्टिस है. लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि डॉक्टर्स आई थिंक दे आर शाई टू टॉक अबाउट देम एंड गुड एक्चुअली वी आर हैव. It's not being shy about talking about it. It's like in their nature. क्योंकि क्या है ना कि वो you must have heard that कि नेकी कर दरिया में डाल. Same thing. It's not being talked about, but it is prevalent. यस Many doctors do this. जी. और मैंने खुद भी देखा है, मैंने खुद भी काफ़ी डॉक्टर्स को देखा है. और मैं जब अभी डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन करती हूँ तो हम लोग एक ट्रीटमेंट वगैरह बात करने के बाद वो खुद से बताते कि कौन से हॉस्पिटल में, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स में ये फ्री है या एट लेस कॉस्ट अवेलेबल है, या कहाँ पे कोई इनसे एनजीओ सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. ऑल द डॉक्टर्स वो खुद इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है तो. सो कमिंग बैक टू द ट्रीटमेंट जो है, कि ओवरऑल ये जो लंग कैंसर ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है एक पेशेंट को डायग्नोसिस होने से लेके फॉलोअप स्टेज में जाने के लिए, ये कितना ड्यूरेशन रहता है? हाउ, क्योंकि फैमिली everyone gets involved into the treatment process. If it is a smooth process, like हमने diagnosis कर लिया, biopsy हो गई, staging हो गई, तो it doesn't take much time. बहुत बार ऐसे होता है seeing the type of lung cancer, एक बार आपने देख लिया कि एडिनोकार्सिनोमा है या स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा या स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है. और फिर हम वेट करते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का. तो वी डोंट वेट कि हमको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आएगा तो ही हम ड्रग्स देंगे. हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और फिर जैसे ही आया, अगर हमारे पास आपका जो टारगेटेड थेरेपी के लिए कोई अगर डेटा आता है, अगर हमारे पास कोई टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, जैसे EGFR, अल क्रॉस या कोई भी चीज़ पॉजिटिव आती है इनमें से, तो हम फिर उसमें टारगेटेड थेरेपी ऐड करेंगे जी. बट हम वेट नहीं करेंगे कि डिजीज प्रोग्रेस हो जाए. तो इट इज एज अर्ली एज पॉसिबल, आई से. एक कंटिन्यूइंग विथ ओवरऑल ट्रीटमेंट, कि अगर घर में किसी एक इंसान को लंग कैंसर है और वो पूरी ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो एक फैमिली का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? उनको किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए? कि एज अ डॉक्टर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है फैमिली से? देखिए सबसे पहले तो क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे ही कैंसर पता चलता है, लोग ना ट्रीटमेंट बंद करवा देते हैं. और वो ना रिलेटिव्स जो हैं वो अपने पेशेंट को बताते नहीं है कि कैंसर है. इस बीच में क्या होता है ना कि
मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को भी कि अगर हमें हमारा दुश्मन पता है तो हम उससे प्रॉपरली लड़ सकते हैं। अगर हमारा दुश्मन पता ही नहीं है तो हम किस चीज़ से लड़ेंगे? जी। और बॉडी में थिंग इज दैट, एक मैं आपको बताता हूँ, कोई भी डिजीज रहा उसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं दैट इज जस्ट हम उसमें एडजुवेंट्स दे रहे हैं। लड़ते तो आपके खुद के बॉडी के सेल्स हैं। करेक्ट। तो एट द एंड यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग एडजुवेंट्स बाय बी इट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और कैंसर। जी। तो जब तक पहली चीज कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसको ये कैंसर का प्रॉब्लम है, तो जब वो फेथ रखेगा डॉक्टर पे तभी उसको कैंसर की दवाइयाँ भी इफेक्ट करेंगी। और सेकेंडली पेशेंट रिलेटिव्स का सपोर्ट इसके लिए भी ज़रूरी रहता है क्योंकि इट इज़, एक बार कैंसर बोल दिया ना तो एक टाबू भी है आज भी। पीपल फियर कि ये हो सकता वो हो सकता, देन दे गो फॉर अल्टरनेटिव medicines and all, which we are not really know कि whether they are effective or not. जी। They need to be consulted, कि relatives भी consult करने चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि पेशेंट को उनको थ्रू द टाइम सपोर्ट करना है। जी। जैसे कि कैंसर डायग्नोज हुआ, कीमोथेरेपी दिया, कुछ साइड इफेक्ट्स हुए, तो उसमें पेशेंट केयर फ्रॉम द रिलेटिव साइड ऑल्सो इंक्रीजेस। जी। दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। करेक्ट। और मैं खुद स्पेशली मेरे फ्रेंड सर्कल में या नॉन इसमें जब भी इस तरीके की बात मुझसे पूछी जाती है कि मेरी ये ट्रीटमेंट चल रही है स्पेशली कीमोथेरेपी और ये, और दे कम अप विद सम गूगल से पढ़ के या कहीं से भी पता करके उनको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जूस लेने से कुछ अच्छा होता है, ये पर्टिकुलर तेल से कुछ अच्छा होता है, तो मैं यूजुअली कहती हूँ कि आपकी जो स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट कीजिए। साथ में जो चीज़ें लेनी है, अगर उसका कोई इंटरेक्शन है, वो फार्माकोलॉजिस्ट, मुझे ड्रग इंटरेक्शन का सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो अगर कोई इंटरेक्शन नहीं है तो उसको लेने में कोई हार्म नहीं है, बट इट इज़ नॉट द ऑल्टरनेटिव टू द मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट। आप ट्रीटमेंट लीजिए, उसके साथ योगा करिए, योगा बहुत इफेक्टिव है, प्राणायाम करिए, वो भी इफेक्टिव है, सुबह वॉक पे जाइए, सब इफेक्टिव है, सनलाइट इफेक्टिव है, बट वो उससे ट्रीटमेंट नहीं है, वो सपोर्ट करेगा आपको पूरा। ट्रीटमेंट तो आपको लेनी है। अपने प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको बताऊं, आई विल बी वेरी अपफ्रंट इन सेइंग दिस। जी। अपने आना लोग डॉक्टर से ज्यादा ना जो नॉन डॉक्टर मेडिकल एडवाइस देते हैं ना उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जी। एक उसका छोटा सा एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुआ। मतलब आपसे जब मीटिंग के लिए हम ज्वाइन कर रहे थे उस समय में एक पेशेंट हमारे पास आया। ये पेशेंट हमारे पास आने के बाद में उसने बोला कि सर मेरा वजन बढ़ रहा है, और मैंने पढ़ा है कि अपना न्यूज़पेपर में कि अंबानी जी के बेटे को अस्थमा का ट्रीटमेंट देने के कारण वो उनका उतना वजन बढ़ गया। अब पेशेंट को ये पता नहीं कि उसको क्या ट्रीटमेंट मिला था, हमें भी नहीं पता उसको क्या ट्रीटमेंट मिला था, बट उसने एक माइंडसेट बना लिया ये दवाइयों के कारण उसको साइड इफेक्ट हो गए। अंडरस्टूड? कैसा है ना कि वो, और फिर बाद में जब मैंने उससे उसका डाइट पूछा तो वो एक टाइम में 8 रोटी खाता है, और उसका अगर आप दिनचर्या पूछेंगे तो वो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, दिन में बैठने का वर्क जॉब है। तो एनी पर्सन हु इज टेकिंग मोर, अगर इफ यू आर ईटिंग मोर एंड यू आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग, नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, करेक्ट, योर वेट इज गोइंग टू इंक्रीज। यस, बट what he related to was the medicines और बस। जी जी। तो अपने यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि लोग क्या व्हाट्सएप वीडियोस, आपके गूगल, इसमें ना वो चीजें ज्यादा पढ़ते हैं जो कि विच इज गिवन बाय अ नॉन डॉक्टर। Therefore, with the start of this talk, I congratulated you for this initiative, जहाँ पे you are spreading a medical knowledge from an expert और person who knows about the disease। मैं दोनों को ब्लेम करना चाहूँगी यहाँ पे, जिनको मेडिकल नॉलेज नहीं है और फिर भी वो इंटरनेट पे एक्सपर्टी लेवल पे बात करते हैं, वर्सेस जिनको मेडिकल नॉलेज है और फिर वो भी नहीं बात करते, क्योंकि डॉक्टर्स लोग बिजी है अपने पेशेंट्स देखने में और ट्रीट करने में, उनको टाइम नहीं मिलता। लेकिन काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो है वो अगर इस तरीके से बात करें, ठीक है, तो वो भी पेशेंट को एक एक्सपर्टी नॉलेज मिलेगा। अगर कोई कमर्शियली बात कर रहा है तो और वो इजीली अवेलेबल है, दैन एक्चुअली जो एक्सपर्टी बात कर रहा है और वो अवेलेबल ही नहीं है, तो अ नॉर्मल पर्सन विल गो फॉर समथिंग दैट इज इजीली अवेलेबल। तो हम भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। नहीं, सी द थिंग इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी रहती है जी, है ना। इट्स थाली कभी एक हाथ से नहीं बचती है, दो हाथ से ही बजेगी। ट्रू। तो देयर आर बोथ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, बट
अभी क्या हो गया विद टाइम, आई एम सीइंग सिंस लास्ट 5 years ना, जी. this Google thing, WhatsApp thing, social media thing have increased a lot. Yeah. Minded the addictions have increased a lot. Yes. They are people are more relying on, matlab I see, matlab it is off the topic, Yeah. but there are increased in psychiatric illnesses because of this. People are indulging into smoking and this thing because of the peer pressure. Correct. सोशल मीडिया में मेरे लाइक कितने रहे, मेरे लाइक कितने नहीं रहे. जी. Small, I not say small, but girls were just entering their pubertal age, like 14 years, 15 years. These girls have resorted to smoking. अपने कितना भी strict वो हो, अपना guidelines हो कि इनको smoke नहीं देना है, but they get it from somewhere and they do smoke. Good. So कैसा है ना कि these all are things which have increased nowadays and spreading wrong things. कि बिना थेरेपी के ये इलाज हो जाता है और frankly speaking इनमें ना कोई कंट्रोल नहीं है. जैसे हम और आप में ना MCA का बहुत कंट्रोल है. सिंपल सा एग्जाम्पल, सिंस यू बिलोंग टू फार्माकोलॉजी बैकग्राउंड, एक ड्रग को इंडिया आने में उसको कितने प्रोसेस से जाना पड़ता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ. है ना, हम कितने क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस करते हैं. Yes. Phase 1, 2, 3, 4, post-marketing surveillance, everything we do it. Correct. Right? लेकिन इनकी जो दवाएं हैं, इनकी जो टारगेटेड थेरेपीज है, या इनके जो आपके जो टारगेटेड, इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये वर्ड, इनके जो सो कॉल्ड टारगेटेड थेरेपीज हैं, जैसे कि हमारा पक्का इलाज, अस्थमा का पक्का इलाज, तो देखिए वो टारगेटेड थेरेपी. तो इसमें ना कोई गवर्नमेंटल होल्ड नहीं है. There is no checking points. Therefore जो आपने बोला ना, I totally agree to that, कि उनको मैं भी यही बोलता हूँ पेशेंट्स को कि आप सोशल मीडिया में जो पढ़े हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन हमारी दवाइयाँ मत लो. जी. So coming back to the lung cancer, ये तो अभी जो रिसेंटली कोई न्यूअर ट्रेंड्स है इधर फॉर द अर्ली डायग्नोसिस या फिर अर्ली ट्रीटमेंट, और इसके लिए आपने कौन से, यू मस्ट बी अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सारे डॉक्टर्स अटेंड करते हैं, वी डू CMEs एज वेल. तो एनीथिंग दैट यू हैव सीन दैट यू थिंक दैट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर एंड इट विल बी रियली ट्रेंडिंग फॉर पेशेंट्स इन फ्यूचर? सी, अभी ना काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया में ही अवेलेबल हैं. बात करें, हम अर्ली डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर काफ़ी कर सकते हैं. रिसेंटली मेरा मैं यूरोपियन कांग्रेस में गया था बार्सिलोना में, वहाँ पे मेरा एक पेपर प्रेजेंटेशन था. मैंने वहाँ पे प्रेजेंट किया कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स जो CT स्कैन्स हुए थे, आपको भी याद होगा कि हर आदमी अपना CT स्कैन करवा रहा था, बताता रहता था. करेक्ट. तो मैंने क्या किया, स्कूल से थोड़ा आगे देखा, मैं रेडियोलॉजिस्ट के साथ बैठा, मैंने बोला एक काम करो, जितने 50 साल के ऊपर लोग हैं उनका CT स्कैन स्क्रीन करते हैं और उनमें लंग कैंसर का प्रेवलेंस निकालते हैं. वाओ. तो वी फाउंड आउट दैट वी वेर एबल टू बेनिफिट लॉट मेनी पीपल. वी ऑल्सो डायग्नोज लंग कैंसर एट स्टेज 1. मतलब मेरे पास एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, we diagnosed her at stage 1 and we got her operated and today she is doing very well. So thing is that ki all modalities of treatment and everything is available. Just one should know कि when to intervene. जी. Early diagnosis के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि we can have this bronchoscopic evaluation. छोटा सा ट्यूमर है तो भी हम वहाँ तक जाके with the help of different हमारे पास thin bronchoscopes या रेडियल ईबर्स, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम जाके वहाँ की बायोप्सी ले सकते हैं. प्लस कुछ जो कैंसर्स जिसमें अगर हाई प्रेडिक्टिव वैल्यू है, पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी अगर कैंसर होने की ज़्यादा है, तो उनमें हम डायरेक्ट सर्जरी पे जा सकते हैं एंड वी कैन डू सर्जिकल स्टेजिंग. तो ऐसा नहीं है कि अपना फॉरेन कंट्रीज में के पास बहुत सारे अपना इक्विपमेंट्स होने हैं कहाँ, जैसे अभी जो बात हो रही थी इक्विपमेंट की, दैट वाज रोबोटिक ब्रोंकोस्कोपी. But same kind of yield, same kind of thing with same precision, we can also give in India. Correct. So we have lot many things, but frankly speaking, to diagnose a lung cancer, you don't require lot many complicated armaments. It can be diagnosed. Yes, for few subset of lung cancer, it is difficult to diagnose, but then
the role of armaments or then the role of different devices come which can help in diagnosing cancer. करेक्ट। ये था कि प्रिवेंशन लेवल पे कि काफ़ी सारे अदर कैंसर्स में वी हैव जेनेटिक टेस्टिंग, बट वो जेनेटिक प्रीडोमिनेंस अगर है तो वी गेट टू नो कि वो अर्ली लेवल पे डिटेक्ट हो सकता है। फॉर लंग कैंसर डू वी हैव एनीथिंग जो नॉर्मल स्क्रीनिंग लेवल पे, लाइक फॉर मी अगर मुझे पता करना है कि क्या मुझे लंग कैंसर है तो कैन आई डू एनी स्क्रीनिंग टेस्ट, एनीथिंग दैट इज नॉट टू मच ऑफ इंटरवेंशन? Simple, a low-dose CT scan can be done to diagnose early lung cancers. This is the basic screening test. हमारे पास अभी लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, बट जैसे कि आपने बहुत क्लियरली मेंशन किया, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, देन पैप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर, वैसे ही देयर शुड हैव बीन लो डोज CT स्कैन फॉर लंग ट्यूमर्स। सो लो डोज CT स्कैन में देखिए, I'll just give you some insight about CT scans. रेगुलरली क्या रहता है ना कि हम बहुत डरते हैं कि हम CT स्कैन्स करवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन आ रहा है। रिकमेंडेशन के हिसाब से 5 साल में आपका जो रेडिएशन एक्सपोजर है शुड नॉट बी मोर देन 100 MSV, दिस इज द यूनिट। अगर आप पर ईयर कैलकुलेट करेंगे तो 20 MSV, जो हम हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन्स करते हैं और चेस्ट, उसमें द रेडिएशन एक्सपोजर इज 7 MSV. So I don't think that there is any harm in doing a low dose CT scan जिसका radiation exposure would be lesser than 7 MSV. और अगर हम करते हैं on a basis that कि patient more than 60 years है, smoker है, एक CT scan किया, फिर patient को 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद फिर से अगर एक CT scan किया, I don't think that there is any harm in doing that thing. And there is no harm about radiation exposure also. जी। फैमिली हिस्ट्री कितना मैटर करती है इसमें? Yes, family history does matter. अगर आपके फैमिली में कैंसर रनिंग है तो there is some kind of genetic mutation. But देखिए again, only genetic mutation will not cause cancer. If you remember, there was one study which was there in which a blood sample used to be drawn and they used to see for certain genetic mutations. And then after that, that test was nearly banned throughout the world. The reason was that it is not only genetic predisposition, but also the environmental factors which have an effect on lung cancer or any kind of cancer. जी। मतलब किसी के पास genetic predisposition है, जरूरी नहीं उसको 100% लंग कैंसर, और लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे उसको लंग कैंसर हो सकता है, जैसे कि वो स्मोकिंग कर रहा है तो या एस्बेस्टॉस में वर्क कर रहा है, एस्बेस्टॉस फैक्ट्री, तो दीज पेशेंट्स आर गोइंग टू, बिकॉज आपको जेनेटिक्स भी फेवर कर रहा है, एनवायरनमेंट भी फेवर कर रहा है, तो दैट पर्सन हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ कैंसर. वाई हाई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहे तो कैंसर होना ऐसा 100% इज नॉट नेसेसरी. You require to have an environmental factor as well. ओके. और सीटी स्कैन, अगर लो डोज सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें काफ़ी अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई हो सकता है, और अगर आप ऑलरेडी रिस्क फैक्टर है आपके तो एज अ स्क्रीनिंग वी कैन डू द लो डोज सीटी ओवेस. ओके, परफेक्ट. Two things I will discuss before I close our today's discussion. One is अगेन जो स्मोकिंग का ही हम बताते हैं मोस्टली, क्योंकि ये जस्ट नॉट अबाउट लंग कैंसर. स्मोकिंग इट्स रिस्पॉन्सिबल, इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर सो मेनी डिसीजेस, राइट? लाइक कार्डियोवास्कुलर जो सच अ बिग प्रॉब्लम, उसमें भी स्मोकिंग कंट्रीब्यूट कर रहा है. और बीइंग अ वुमेन आई एम पैशनेट अबाउट एजुकेटिंग मोर वुमेन. तो एक अनफॉर्चुनेटली जो एक कूलनेस आता है, जैसे मैंने देखा है कि वुमेन में फॉर द इंडिपेंडेंस दैट दे वांट टू फील और द स्टाइल दे वांट टू फील. आई हैव सीन कि बहुत सारी वुमेन आजकल दे आर इनटू स्मोकिंग. ठीक है. और उसमें ऑफ कोर्स फॉर प्रेगनेंसी देयर आर डिफरेंट साइड इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग, और कैंसर भी ये है. एंड अनफॉर्चुनेटली आवर मीडिया डज नॉट हेल्प अस टू, except for providing a small little asterisk over there that smoking is injurious to your health, but they still show that influential women or those who are successful women, they smoke because they want to show that they are exposed to more stress and they need something to vent out, which is not probably stretches or flexibility exercise or a workout, but a smoke. Okay, unfortunately वो दिखाया जाता है. तो through this platform
फॉर गर्ल्स, ओके, जो आपके पास पेशेंट्स भी आते हैं, हाउ व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव देम, एंड ऑफ कोर्स लेटर टू एनीवन हु इज probably to the respecter of See, first thing, you should not always inculcate certain apna addictions because you are seeing that the influential person is doing that. Right. Secondly, any kind of addiction is harmful. And this is not about the style statement. I'll just quote one example. A person, if he is simpler, dressing in a simple way, can be much more knowledgeable than a person who is like having lot of money with all kind of your Gucci and Prada going along everywhere and smoking and doing everything. So one thing one has to understand that it's not always about this what you call it, as you attach that stardom to it, like smoking is a style statement. It's not about the style statement. Secondly, you should not be indulging into peer pressure. You should be more actively telling that person to stop smoking. Suppose one of your good peer is smoking, you should tell them to stop smoking rather than you getting indulgent. And as said in many ways, that the charity begins at home. So first you have to restrain yourself from smoking, not go into such habits. Then you have to start counseling other person not to smoke. Yes, there would be many hindrances, many obstacles, but once you start doing this thing, this will really help. And as you said, women have one very peculiar property which I have seen in all women, is you people have a very good convincing power. You can convince many persons about many things. So more of public awareness, more of telling people not to smoke, telling your spouse not to smoke, telling your boyfriend not to smoke, that will help them, not only them but also you. You going for a smoking with your boyfriend is not cool. Telling him to quit smoking and making to him a point where he finds that supports in you, that support which he is finding in that cigarette, if he finds the support in you, that would be like you are more, you would be on a winning side. It would be a win-win position for both of you. That's a nice message. Okay, we're going to make a reel out of it then. Okay, perfect. Anything that I have missed out, sir? Nothing. We have covered everything about lung cancer. Yeah. Few closing points which I need to add. Yes. Firstly, always try to seek a specialist help when in doubt regarding lung cancer. Early diagnosis is key to a good cure and a longevity of life. Thirdly, there are many treatment modalities available. You can ask your doctor about those treatment modalities. Today, it's not a time of a buffet kind of approach. It is more of a la carte. You can demand doctor that I want to go for these things, and that way he can customize a treatment for you. So everything is customizable. Gee. Lastly, don't resort to smoking habits. This will increase the chances of lung cancer. True, absolutely true. Very well said. And एक चीज़ मैं आपके पॉइंट को इलॉबरेट करना चाहती हूँ कि व्हेन यू से स्पेशलिस्ट, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है स्पेशलिस्ट एक्चुअली होते क्या है. आई विल टेल यू वेरी क्विक स्मॉल इंसिडेंट्स. वन ऑफ माई टीम पर्सन, very well qualified, and he had little bit of a cough, fever, everything. हमारे ऑफिस में MD डॉक्टर्स है, MBBS डॉक्टर्स है, सेम ऑफिस में हम लोग बैठ के साथ में काम करते हैं. He said कि मेरे को थोड़ा खांसी वगैरह हो रहा है, I'll work from home and visit a doctor. Because he visited a doctor, he took the screenshot of the prescription and sent it to all the doctors in the team. And every doctor sent him the same message कि ये कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जो डिग्री लिखा था we all were like कि आपको पता है कौन से है तो डिग्री पढ़ लो, MCA रजिस्ट्रेशन देख लो करके. So when we talk about
स्पेशलिस्ट इन पल्मोनोलॉजी और लंग कैंसर रिलेटेड, वी आर टॉकिंग अबाउट MBBS करते हैं डॉक्टर्स, उसके बाद वो MD करते हैं, उसके बाद में वो DM करते हैं या DNP करते हैं, जिसमें उनका सुपर स्पेशलाइजेशन और वो मल्टीपल फेलोशिप करके एक एक यूनिक टेक्निक्स की मास्टरी करते हैं, ताकि और उनको ज़्यादा सुपर स्पेशलिटी एक्सपीरियंसेस आए. So that all matters. So what's the designation people should read when you say that ki specialist hai karke? So we are talking about MBBS, MD with pulmonology. Yeah, MD in pulmonology or DNB pulmonology. These are the basic requirements. But I'll be very upfront regarding the specialist also. See, the thing is that it's not only about the degrees. Yep. The person should know that to whom to visit. Like if they have a lung problem, like cough, breathlessness, they should go to a lung specialist like pulmonologist or a chest physician. These are the two designations which are being used. क्योंकि degrees तो everybody writes, है ना? तो बहुत बार डिग्री समझ में भी नहीं आती है. People are confused between DM, DNB. They are confused between MD, DNB. बहुत सारे confusions are there. They are confused between certain diplomas are also there in respiratory medicine, like DTCD is there, TDD is there. So all these abbreviations people are very confused of. Yes. Better way, go to a consultant chest physician or consultant pulmonologist. Correct. क्योंकि हम लोग मुझे before we started all this program, I was surprised that काफ़ी लोग जो very well educated people, they were not knowing the difference between gastroenterologist and gastroenterosurgeon. And then I took that as my, limitation of what I was communicating for so many years. And then we started posting, अच्छा ठीक है, ये definition of a doctor की, ये medically treat करते हैं या surgically treat करते हैं, so that we started. So when you say specialist, it's very important message that look for the chest physician and also look for a pulmonologist. और आप देखिए कौन से डॉक्टर को आप विजिट कर रहे हैं. Perfect. And thank you so much for your time. And it was really, really, really helpful. And we'll get in touch with you for more topics regarding pulmonology. Or Sure. Thanks for your time.